Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's class 12 subject economics, and the topic which we are going to discuss today is functions of central bank. Yes, dear students, in the last lecture I have already discussed with you people what do we mean by central bank. Let me recapitulate the definition of central bank. A central bank, in simple words, we can define central bank. It is a bank which is the head of all banks in the country. It is the bank which acts as the head of all banks in the country. So all the banks are controlled by central bank of any country. So for as it is functions are concerned, there are numerous functions of central bank of any country. So let me discuss the important functions of central bank one by one with you people. The first function of the central bank is it is the note issuing authority in a country. डियर स्टूडेंट्स, जो हम ये नोट देखते हैं, 100 का नोट देखते हैं या 200 का नोट देखते हैं या 500 का या 2000 का नोट, जितने भी हम नोट्स देखते हैं, जो ये नोट्स हैं, इट इज ऑल दिस नोट्स आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक. जो ये नोट्स होते हैं, कि ये कौन बनाता है? ये सेंट्रल बैंक बनाता है अपनी कंट्री का. ये हमारा J&K बैंक या केनरा बैंक या स्टेट बैंक या ICI bank and other banks are not authorized to make the notes. So it is the central bank which makes the notes, which issues the notes, which issues the currency. So dear students, the important function of the central bank it is note issuing authority. Central bank is empowered to print and circulate currency notes for the sake of uniformity and simplicity. Notes are issued by central bank on the basis of some rules and regulations that may be different in different countries. Reserve Bank of India RBI is central bank of our country. यानी कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो हु इशूज द नोट्स? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया which issues the currency in our country. So it issues the notes of all denominations except 1 rupee note. ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. अगर आपको पूछा जाएगा कि सभी जो करेंसी है वो क्या सेंट्रल बैंक से ही इशू होती है? बिल्कुल, सारी करेंसी जो इशू होती है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, एक्सेप्ट एक चीज, 1 रुपी का नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री वो इशू कर सकता है, मगर सिर्फ 1 रुपी नोट, नॉट मोर देन 1 रुपी नोट. 1 रुपी नोट किसी कंट्री की हुकूमत भी छाप सकती है, बट that still needs the consent of RBI. उसको भी RBI की पहले कंसेंट लेनी होती है. वो भी हुकूमत नहीं जब चाहेगी तब छपाएगी ना, इसको एक कंसेंट लेनी पड़ती है RBI से, तब एक हुकूमत 1 रुपए के नोट छपा सकती है, वरना कोई नोट RBI के बगैर नहीं छप सकता है किसी मुल्क में. So this was the most important function of the Reserve Bank of India. Another important function of Reserve Bank of India is, or we can say that central bank of any country is it controls the credit. ये क्रेडिट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Control of credit is actually the lending activities of commercial banks, which is an important function of the central bank. देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हम J&K में रहते हैं, हम
चंद बैंकों का नाम जानते हैं, जैसे J&K बैंक, स्टेट बैंक, कैनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, इसी तरह HDFC बैंक, इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक। इन बैंकों का नाम हम जानते हैं। चलो हम इतने ही बैंकों के एग्जाम्पल लेंगे। क्या हमने ये कभी सोचा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एरिया में जो ये बैंक्स हैं, हमने कभी ये सोचा, हमें जब किसी वक्त अपने बजट से ज़्यादा कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? यूजुअली हम लोन लेते हैं। तो हम लोन के लिए कहाँ अप्लाई करते हैं? बैंक पे अप्लाई करते हैं। जब हम बैंक पे अप्लाई करते हैं, certainly the branch manager of the concerned bank inquires certain documents from us. After the proper documentation, तो हम फिर वो लोन हासिल करते हैं। मगर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि ये बैंक लोन देता है, जिसको हम कहते हैं उधार देता है, ये बैंक ये अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकता है। सो हु डायरेक्ट्स दिस? ये कौन इसको डायरेक्शन देता है? यानी कि इन बैंकों को, जो हम जिनका बैंकों का मैंने नाम लिया, इन बैंकों को कौन डायरेक्ट करता है कि आपको कितना लैंड करना है, कितना मनी सर्कुलेट करना है इकोनॉमी में? दैट इज डायरेक्टेड बाय RBI। जब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि इकोनॉमी में जो है पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि अगर किसी इकोनॉमी में पैसा बेतहाशा इशू किया जाए तो वहाँ एक सिंपल मैं कहूँगा, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी? तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी, वहाँ इन्फ्लेशन होगी, यानी कि कीमतें बढ़ेंगी। जब हर एक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो किसी भी चीज़ हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसा दे सकता है। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये बैंक्स होते हैं, ये अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कितना किसी को उधार दे सकते हैं? इट इज़ रेगुलेटेड, इट इज़ गाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री। यस डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को हमने याद रखना चाहिए कि जो ये सेंट्रल बैंक हैं, इट गाइड्स द कमर्शियल बैंक्स इन क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि पैसा उधार देने के लिए इनको गाइड होता है। RBI गाइड करता है, वक्तन फवक्तन गाइड करता है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ एनी कंट्री या सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस there are numerous and important functions of the central bank. So for today we have discussed these two, and in another chapter we will discuss other functions of the central bank. So dear students, as far as this topic is concerned, this topic is not only related to your subject economics, it is related to the day-to-day life also. So इस टॉपिक के लिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझिए और इस टॉपिक को उसी तरह सीखिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है एक मेन टॉपिक, एक मेन आइडिया है, एक मेन थिंकिंग है, जो एक सिर्फ हमें किताबों में नहीं ज़रूरत है, बल्कि इसकी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो कुछ किताबों में है उसका हम सामना करते हैं, मगर आम इंसान किसी टर्म को नहीं समझता है। मगर ये जो है, ये टर्म सेंट्रल बैंक, इसकी फंक्शंस एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी शुड नो। हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखानी है, क्योंकि हमें कोई आम इंसान भी कभी ये सवाल कर सकता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो प्लीज़ लर्न दिस टॉपिक very keenly. So this was all about today. Allah Hafzan Nasir.